Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel PMB Tutorial. So in last session we have discussed the questions of exercise 8.2, right? And in today's session we are going to discuss how to convert given ratio to percents, okay? And decrease or increase as percents, okay? So let's start it. So sometimes what happen, we are given parts in the form of ratios. We are given parts of anything in the form of ratios. So there we need to convert those in percent. So how do we do that? Let's understand. Okay, means we have to convert ratios to percent. Okay, so let's understand this with an example. For example, suppose 20 chocolates are to be divided between Karuna and Karan in the ratio of 3:2. So how much percents each will get? अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना है? 20 है. मीन्स 20 चॉकलेट्स डिवाइड करना है करुणा और करण के बीच में. मीन्स 2 पीपल में डिवाइड करना है. ओके, बट डिवीजन किस तरीके से होना चाहिए कि 3 पार्ट्स करुणा के पास पहुंचे और 2 पार्ट्स चॉकलेट्स का किसके पास? करण के पास होना चाहिए. ठीक है. फिर अब आपको क्या बताना है कि कितना परसेंट किसके पास पहुंच रहा है. ओके, मीन्स कितना परसेंट करुणा को मिलेगा और कितना परसेंट करण को मिलेगा. ओके, सो सी व्हाट डू वी डू इन सच क्वेश्चंस. The ratio is 3:2. Ratio is 3:2. It means 3 parts of the chocolates will be shared by Karuna and 2 parts of these 20 chocolates will be shared by Karan. It means the total number of parts of these 20 chocolates will be 3 plus 2 means 5 parts. Okay, so total parts of 20 chocolates will be 3 plus 2 means 5. मीन्स इन 20 चॉकलेट्स को हमें कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 5 पार्ट्स में डिवाइड करने पर क्या 3 पार्ट्स करुणा के पास होना चाहिए और 2 पार्ट्स करण के पास होना चाहिए. ओके, तो अगर यहाँ पर आपको पार्ट्स दे रखे हैं देन वी कैन फ्रेम फ्रैक्शंस कि कितना पार्ट किसके पास पहुँच रहा है. तो देखिए 3 out of 5 shared by Karuna and 2 out of 5 shared by Karan. Okay, so the fraction shared by Karuna will be 3 out of 5. Okay, 3 out of 5. एंड अब देखिए हमने गिवन रेशियो को किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में. ओके, एंड इन लास्ट सेशन we have discussed how to convert a fraction into percent by multiplying by 100%. So the percent of chocolate, percent of chocolate shared by or received by Karuna will be 3/5 into 100%. Okay, it means 5 1s are 5 and 25s are 100 means 20 times it will go. So 20 into 3 will be 60. Okay, so
out of 20 chocolates, 60% is shared by Karuna. Okay, now we will calculate for Karan. So fraction shared by Karan will be 2 out of 5. Means 2/5 part of these chocolates are received by Karan. Okay. Similarly, 3/5 parts will be shared by Karuna. Okay. Now we can calculate percent of chocolates received by Karan will be 2/5 into 100%. Okay, that means 20 into 2 means 40. 40% of the chocolates is shared by Karan. Okay, since these chocolates are to divide in 2 people. Okay, so the sum of the percentage of these two should be 100. So let's check. 60% plus 40% is 100%. Okay, चॉकलेट्स कितनी है? टोटल चॉकलेट्स 20 हैं. मीन्स 100% चॉकलेट्स को किसमें? करुणा और करण के बीच में डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें 3 पार्ट्स किसके पास होना चाहिए? करुणा के पास, और 2 पार्ट्स करण के पास होना चाहिए. हमें रेशियो दे रखा है. ठीक है. देन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर द परसेंट ऑल्सो, कि कितना परसेंट किसके पास शेयर हो रहा है. ओके, सो 60% ऑफ द चॉकलेट्स आर शेयर्ड बाय Karuna and 40% of the chocolates shared by Karan. Okay, so that is how we convert ratios to percents. Okay, I think this is clear with this example. Let's take more example. For example, you have given a ratio 7:8. Means यहाँ पर आपको डायरेक्ट रेशियो दे रखा है. ठीक है. अब इसको कैसे परसेंट में चेंज करना है, दैट वी विल लर्न हियर. सी 7:8, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ है उसको हम बिटवीन 2 डिवाइड कर रहे हैं. ओके, जिसमें से 7 पार्ट्स एक के पास होगा और 8 पार्ट्स दूसरे के पास होगा. ओके, दूसरे के पास होगा. ओके, इट मीन्स टोटल पार्ट्स कितना होगा? टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 7 + 8 मीन्स 15. ओके, समथिंग you have divided in 2 in the ratio of 7:8. It means 7 parts out of 15 will be get by first one, and 8 parts out of 15 parts will be get by another. Okay, 2 लोगों में कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको दे नहीं रखा है, आपको सिर्फ ये रेशियो दे रखा है. इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 2 लोगों में कोई चीज़ डिवाइड हो रही है कि 7 पार्ट्स एक के पास होगा और 8 पार्ट्स दूसरे के पास होगा. मतलब टोटल उस चीज़ के कितने पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स किए जा रहे हैं? 15 किए जा रहे हैं. मीन्स 7 out of 15 is shared by 1 and 8 parts out of 15 is shared by another. Okay, now we have to calculate its percent, कि फर्स्ट के पास कितना परसेंट होगा और सेकंड के पास कितना परसेंट होगा. ओके, सो सी परसेंट ऑफ फर्स्ट will be, the ratio is 7:8. It means the fraction of first one will be 7 out of 15. Okay, now we have to change it in percent, so we will multiply by 100%. 7/15 into 100%. Okay, so see 7 into 100 will be 700 and upon 15%.
Okay, now if we divide it by 5, so we will get 5 1 ja 5, okay, 5 4 ja 20, means 140. And if we divide this 15 by 5, means 3, 140 upon 3%. So this is an improper fraction. We can change it in decimal as well as in mixed fraction. Okay, so if we change it in decimal, so 3 4 ja 12, 3 6 ja 18, 3 6 ja 18, means 46.6 something percent. Okay, means 46.6% is shared by the first one. Okay, कितना परसेंट, इस फर्स्ट का कितना परसेंट, 46.6%. ओके, नाउ कैलकुलेट फॉर सेकेंड. 8 upon 15 into 100%. Okay, so 800 upon 15, 5 is common, so we will divide it 5. So we will divide it by 5. So 16 5 are 80, means 160 divided by 3%. Okay, so if we get its decimal form, so 3 5 are 15, okay, and 3 3 are 9. Okay, again 3 3 are 9, means approx 53.3%. ओके, तो अगर आपको रेशियो दे रखा होता है और परसेंट में चेंज करना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो दे रखा है. 2 क्वांटिटीज़, इसका मतलब फर्स्ट के पास कितना 7 पार्ट्स पहुँच रहा है और सेकंड के पास कितना 8 पार्ट्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ 2 क्वांटिटीज़ मेकिंग 15. ओके, सो percentage of first quantity will be 7 out of 15 into 100%. Okay, similarly the percent of second quantity will be 8 out of 15 into 100%. Okay, तो इस रेशियो की हेल्प से पहले हमें फ्रैक्शन फॉर्म करना है और फ्रैक्शन से हम परसेंट में चेंज कर देंगे. Okay, let's take another example to understand it better. Suppose for example the ratio is 2:4:6, means anything divided in 3. Okay, anything is here divided in 3, means there are 3 quantities here, of which 2, first one is having 2 parts, second one is having 4 parts, and the third one is having 6 parts. So here the total number of parts will be, total number of parts will be 2 plus 4 plus 6, means 2 plus 4 plus 6, 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is 12. Okay, so the whole thing is divided in 12 parts in the ratio of 2:4:6, means 2 out of these 12 parts is having by 1 quantity, and the second having 4 by 12, and the third one is having 6 parts out of 12 parts. ओके, किसी चीज़ को सपोज यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, मीन्स नंबर्स में रेशियो दे रखा है, आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ है एक्चुअली. ठीक है, तो कोई भी चीज़ है उसको 3 में डिवाइड किया गया है और किस रेशियो में 2:4:6 के रेशियो, मीन्स 2 पार्ट्स फर्स्ट के पास आ रहा है, 4 पार्ट्स सेकेंड के पास जा रहा है और 6 पार्ट्स थर्ड के पास जा रहा है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स उस थिंग को कितने पार्ट्स, टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 2 + 4 + 6 मीन्स 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इसका मतलब फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/12, 2 out of 12, and the second one will be 4 out of 12, and the third one will be 6 out of 12. Okay, so right here, so percent of first part will be 2 out of 12. So the fraction of first part will be 2/12 upon
परसेंट में चेंज करना है, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100%. ओके, सो 200, 2 into 100 is 200 upon 12%. Okay, so if we divide this number by 2, so we will get 100, 2 6 are 12. Again we can divide it by 2, 2 5 are 10 and 2 3 are means 50 upon 3%. Now we can change it in decimal. So 3 1 are 3, 3 6 are 18, again 3 6 are 18 means 16.6% approx. ओके, तो फर्स्ट पार्ट का परसेंट क्या हो जाएगा 16.6%. ओके, इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस सेकेंड. सो परसेंट ऑफ सेकेंड, सेकेंड का क्या परसेंट होगा, फ्रैक्शन क्या होगा 4 out of 12 into 100%. ओके, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इट मीन्स 100 upon 3%. ओके, so if we divide it, so we will get 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 33.3% something. Okay, now calculate for last one. So percent of the third part का क्या हो जाएगा 6 upon 12 फ्रैक्शन हो जाएगा और 100% से मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स 6 upon 12 1 upon 2, so 100 upon 2% means 50%. ओके, तो फर्स्ट पार्ट का कितना परसेंट हो जाएगा 16.6%. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट का 33.3% एंड थर्ड पार्ट का 50%. ओके, नाउ द टॉपिक इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट. सो देयर आर मैनी टाइम्स व्हेन वी फेस सच एग्जाम्पल्स. प्राइस ऑफ अ शर्ट डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹600 to ₹400. एक शर्ट का प्राइस 600 से डिक्रीज होकर कितना पहुंच गया है 400. ओके, तो यहाँ ये जो रुपीज़ में कॉस्ट में डिक्रीज हो रहा है तो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है. सिमिलरली इसमें मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 to 40. किसी टेस्ट में मार्क्स पहले 30 थे, फिर 30 से कितना हो गए 40 हो गए, मीन्स इंक्रीज हो रहा है. तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस परसेंट of increase or decrease. Okay, so in this topic we will learn the same, how do we convert decrease or increase in percent. Okay, ये जो भी increase हो रहा है किसी certain quantity में या decrease हो रहा है तो कितना percent increase और decrease हो रहा है, that we will learn how to calculate. Okay, so let's take an example with the help of it will be clear to you all. Okay, so Mahi bought a laptop for ₹40,000. The next year the price went up to ₹45,000. So what was the percent of increase in cost? माही ने एक लैपटॉप खरीदा है कितने रुपीज़ में 40,000 रुपीज़ में. ओके, नेक्स्ट ईयर कॉस्ट में इंक्रीज हो गया है, प्राइस बढ़ गए हैं, कितना हो गया है 45,000. तो कितना परसेंट कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, दैट वी विल कैलकुलेट. ओके, सो सी इनिशियल जो कॉस्ट है लैपटॉप की वो क्या है 40,000. ओके, इनिशियल कॉस्ट. Initial cost of laptop is ₹40,000. Okay. The next year the price went up to ₹45,000. It means and next year
cost of laptop is rupees 45,000. It means amount of increase, कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. सो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है उसका अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. दिस 45,000 माइनस 40,000. 45,000 माइनस 40,000 मीन्स 5,000. इसका मतलब नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, 5,000 का इंक्रीज हुआ है. ठीक है, इनिशियल जो कॉस्ट था वो 40,000 था, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया है 45,000. तो यहाँ पर जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट में वो कितना है 5,000. ओके, सो परसेंट इंक्रीज इन कॉस्ट क्या होगा. देखिए, अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना चेंज हो रहा है मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज. यहाँ पर चेंज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, किसी कंडीशन में डिक्रीज होगा. सो दैट इज अमाउंट ऑफ चेंज. ओके, सो अमाउंट ऑफ इंक्रीज यहाँ पर मीन्स अमाउंट ऑफ इंक्रीज into 100 because we are calculating here percentage. Okay, so we will multiply by 100%. Okay, upon किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है. बाई लुकिंग द इनिशियल कॉस्ट. इनिशियल कॉस्ट को देखते हुए ही हम बोल रहे हैं ना कि कितना इंक्रीज हुआ है. सो इन डिनोमिनेटर विल बी इनिशियल कॉस्ट मीन्स इनिशियल अमाउंट. ओके, जब भी हमें इस तरीके का एग्जाम्पल दे रखा होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कितना चेंज हो रहा है मीन्स कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज है, कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है. सो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इंटू 100 अपॉन द इनिशियल अमाउंट. यहाँ पर इनिशियली कॉस्ट कितनी थी 40,000, तो हम 40,000 रखेंगे. तो देखिए अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना हो गया आपका 5,000 इंटू 100 upon initial cost of laptop that is 40,000. So 1 dash 0 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, means 50 upon 4. If we calculate it, so 4 1 ja 4. Okay, 4 2 ja 8. And 4 5 are 20 means 12.5%. 12.5% price has been increased. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में 12.5% कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है. तो ऐसे बहुत सी सिचुएशन है जहाँ पर हम कितना चेंज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, इसका परसेंट निकालना होता है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है अमाउंट ऑफ चेंज कि कितना चेंज हुआ है मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद हमें परसेंट इंक्रीज कैसे निकालना है या परसेंट डिक्रीज कैसे निकालना है या परसेंट चेंज कैसे निकालना है. अमाउंट ऑफ चेंज इंटू 100 अपॉन इनिशियल अमाउंट. इनिशियल अमाउंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट हो जाएगी लैपटॉप की. ओके, अमाउंट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कॉस्ट कि कितना इंक्रीज हुआ है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. इन क्लास 6 राजेश गॉट 300 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड इन क्लास 7th ही गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 500. सो व्हाट परसेंट इंक्रीज इन मार्क्स. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्लास 6 में राजेश के कितने मार्क्स हैं
300 आउट ऑफ 500 एंड इन क्लास 7 400 मार्क्स है, मीन्स 300 से कितना इंक्रीज हुए हैं 400 बाई 100 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये जो 100 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 6 क्लास से 7th में कितना 100 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ओके, सो लेट्स सी इनिशियल अमाउंट मीन्स द मार्क्स इन क्लास 6. So initial amount that is equal to marks in class 6 that is equal to 300. Okay, so in class 7th marks has increased. So marks in class 7th is 400. It means what is the change in amount here? Here marks has been increased. Okay, यहाँ पर क्या marks increase हो रहे हैं. So amount of change will be increase in marks. यहाँ पर अमाउंट में कितना चेंज हो रहा है, मतलब मार्क्स में कितना चेंज हो रहा है, दैट वी विल कैलकुलेट 400 माइनस 300 मीन्स 100 मार्क्स. ठीक है, 300 से 400 हुआ तो कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 100. ओके, नाउ we have to calculate percent increase in marks. मार्क्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स इंक्रीज इन मार्क्स. इंक्रीज इन मार्क्स इंटू 100% डिवाइड बाई ओरिजिनल अमाउंट or initial amount means marks in class 6th. Okay, so increase in marks is 100 into 100% divide by marks in class 6, that is 300. Okay, so these two 0 will be cancelled out by these two 0. So 100 upon 3%. It means if we calculate this fraction, it will be 33.3%. So 33.3% marks has been increased from class 6 to class 7th. ठीक है, क्लास 6 के कंपैरिजन में क्लास 6 में कितने परसेंट मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 33.3% मार्क्स. Okay, so this is how we calculate increase or decrease as percent. Okay, so that's all about today's session in which we have discussed how to convert ratio to percents and also how to represent or write increase or decrease as percent. If you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we will discuss some more important topics of this chapter. Till then, keep watching my channel. Thank you.